Assalamu alaikum, dear students. I am coming with the same topic that I discussed in my previous lecture, and that topic is angular projectile motion. But dear students, today I will discuss here, my thrust will be rather on the instantaneous velocity. And in fact, dear students, we have already discussed here certain parameters related to projectile motion, and these parameters were, dear students, time of flight. I discussed here the path of projectile. Dear students, I discussed and I derived expression for here maximum height and horizontal range. Okay, students, today this topic, my topic that here is instantaneous velocity, but again here angular projectile motion. I have not yet taken here horizontal projectile motion. Inshallah, I will take this very soon, and I will also throw light on horizontal projectile motion. But dear students, today's topic is about instantaneous velocity in angular projectile motion, part third of the projectile motion. And so, dear students, so listen to me. ओके वेरी नाइस। तो आज क्या करना है बेटा, यहाँ डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। See dear students, when we launch a body, when we throw a body with some angle, with giving some initial velocity u, and that makes an angle theta with the horizontal. So that is known as angular projectile motion, and it occurs and it adopts a path, and that path here is a parabolic path. And it is here a two-dimensional for dear students. Okay, very nice. So this is a parabolic path. Here both x and y coordinates change when particle changes its position. And this takes place in a plane, that is xy plane. It does not goes here. Z axis is not here involved because we neglect here resistance. I have already told you about that. But dear students, my concept today is instantaneous velocity. Okay, dear students. See, this is, let us say this is x-axis, dear students, and this is y-axis, and this is xy plane. The plane of the board is the plane. All things are happening there in the plane of the board, and that is why it is known as motion in a plane. And this board has two dimensions. One is x-axis and another is y-axis. So when motion takes place, both coordinates x as well as y change during the motion. But you should keep this in mind. This is a curvilinear motion, curvature, and curvilinear motion in a plane is known as a two-dimensional motion. Okay, very nice. तो देखो बेटा क्या है, आप क्या करेंगे। अब मेरा जो है ना पॉइंट वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर। सी डियर स्टूडेंट्स, here the projectile, here the body is moving under the combined effect of two velocities. Dear students, one velocity is along the horizontal direction, and dear students, one velocity is along the vertical direction. But dear students, as we know that Fx is 0, that is no force is acting along the horizontal direction. So dear students, कोई acceleration नहीं हो रही है, no acceleration is there in what direction? That is horizontal direction. And when Ax is 0, therefore dear students, Vx remains constant. What does it mean? No force is acting along horizontal direction, along x-axis, and thus acceleration is 0, because when there is no force, so there is no acceleration. Okay, have you got this? When x is, dear student, 0, तो body चल रही है along x-axis with uniform velocity, and that is why we say that when Vx remains constant, हम यहाँ we can say in other words that horizontal, but Vx is nothing, that is horizontal component of velocity. That is Vx is horizontal, that is x component of velocity, that is known as horizontal component of velocity, that remains constant. क्या यहाँ रहे constant रहता है? Horizontal component of velocity, horizontal component of velocity remains constant. याद रखो, very important point. बेटे क्या पहला पॉइंट, आज का पहला पॉइंट क्या है, जबरदस्त पॉइंट। यहाँ क्या याद रखना है, गोटे याद रखो, समझ लो लेकिन फिर रट्टे ले लो। देखो बेटे क्या है, Vx remains constant. What does it mean? That is horizontal component of velocity remains constant. Horizontal component of velocity remains constant because there is no force along x-axis, no acceleration along x-axis, and no, therefore velocity along x-axis remains constant. See dear, ये कैसे आता है? We know that Ax is equal to dVx by dt. है ना बेटा? Rate of change of velocity with respect to time is instantaneous acceleration along x-axis.
अगर बेटे ये जीरो है तो ये क्या है यार, dv x बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की जीरो आ जाए तो vx क्या है, vx इज कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की क्या आ रही है, जीरो, तो vx क्या है बेटा, vx इज कांस्टेंट। याद रहा, याद रहो बेटा, ये मेहरबानी कर प्लीज डियर स्टूडेंट्स, कीप दिस थिंग इन माइंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो किस पर चेंज आ रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। So here vertical component of velocity is continuously changing during the motion, during the projectile motion. See dear students, why it is changing? मैं बताऊंगा थोड़ा यहाँ बेटा। देखो यहाँ क्या है, no force is acting here. So मैंने ये डिस्कस किया horizontal, अब vertical के बारे में थोड़ा बताएंगे, vertical के बारे में। देखो बेटा क्या है, vertical component of velocity किससे डिनोट करते हैं, v by से। देखो बेटा क्या है, यहाँ मैंने कहा कि जब यहाँ तो यहाँ क्या है, here is gravitation, acceleration due to gravity. Here is a gravitational force, here is acceleration due to gravity, and due to this acceleration due to gravity, due to this force, velocity is increasing. Here velocity is decreasing when it goes from 0 to maximum point. Let us take this as point M. But from M to this point, let us say this is S point here, the velocity or speed is decreasing. So velocity is continuously changing here, but it is due to change, and it is ये कौन लाता है, that is gravitational force. देखो बेटा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सेलरेशन आती है यहाँ, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे बेटा, देखो क्या है, देखो क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट है यहाँ बेटा, ये आपको पता है कि u रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, u cos थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है ना बेटा, तो ये u का कौन सा कंपोनेंट है, u sin थीटा। देखो बेटा क्या है, अब ये है इसके, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये दिस इज रिमेन्स कांस्टेंट, नो ये दिस कंपोनेंट u sin थीटा, this is dear students upward, but acceleration due to gravity is downwards. तो ये कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का कंपोनेंट, यहाँ ये कम कम हो रहा है, थोड़ा ये छोटा छोटा हो रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड। पहले इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होती है, फिर छोटा बनता है, फिर छोटा बनता है, फिर छोटा बनता है, फिर इससे छोटा बनता है, तो और यहाँ क्या बनता है, ये बिल्कुल यहाँ जीरो बनता है। कौन सा कंपोनेंट, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा कंपोनेंट जो है ना, यहाँ ये जीरो बनता है, यू वाई बी वाई बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या बनती है, ये जीरो। क्यों, क्योंकि द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। when a and g, see dear, when you and when initial speed and acceleration due to gravity are pointing in opposite direction, speed decreases and at the highest point it becomes zero. So what is vy at the highest point, what is vy here is zero, vy here is zero. Why? Because it is just like this. I am resolving here motion along x-axis and y-axis. तो मैं y-axis की बात करूँ, because I am independently and individually taking only along y-axis, because I have resolved here the motion. Here is the resolution of a motion. Now I am separately taking x-axis and y-axis. See here, आप जब यहाँ कोई बॉडी थ्रो करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन फाइनल पॉइंट पर क्या होती है, वो जीरो बनती है। लेकिन यहाँ फाइनल पॉइंट कौन सा है वर्टिकल के लिए, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, हॉरिजॉन्टल इसको आगे लेती है, लेकिन जो वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन, इसको थोड़ा क्या, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो स्पीड डिक्रीजेस एंड फाइनली हियर स्पीड बिकम्स जीरो। सो कोई कहेगा आपको व्हाट इज द वर्टिकल स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, आपको कहना सीधे जीरो। व्हाट इज द वर्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। स्टार्ट में क्या था, यू cos थीटा, यहाँ भी बेटा ये यू cos थीटा, यहाँ कौन से चलती है ना, यहाँ ये कौन सा कंपोनेंट है, यू, क्योंकि ये दूसरे वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर यहाँ यू cos थीटा तो यहाँ भी यू cos थीटा, तो यहाँ भी यू cos थीटा, हर जगह यू, यहाँ भी बेटा क्या है, यू cos थीटा, यहाँ भी एक कंपोनेंट क्या होगा, यू cos थीटा, सेम, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ डिक्रीज और फिर क्या हो रही है इसमें, इस दूसरे जो है ना, यहाँ बेटा यहाँ सिमेट्रिकल पार्ट है, यहाँ जी भी नीचे और यू भी, यू देखो बेटे के, अब जी है ना यहाँ g, क्योंकि now the motion this the vertical velocity, that is vertical velocity starts increasing. Why it starts increasing, why, because now the g and u have same direction, g and velocity have same direction in the this half. So when velocity and g have in the same direction, speed increases, thus it strikes the ground with the maximum speed, that is with the same speed as that here in the initial point. I will derive these things here dear students, no problem है, लेकिन समझ में आई बात, हाँ आई समझ में बात। तो देखो बेटा क्या, देखो dear students क्या है, आप derive करेंगे हम बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आप कहेंगे। देखो बेटा क्या है, dear students देखो, see dear, आप क्या है यहाँ देखो बेटा,
यहां मैंने ऐसे ये एक्स एक्सिस है और बेटे ये वाई एक्सिस, तो देखो बेटे के यहां मैंने यहाँ ये ओरिजिन है और वहीं से मैंने प्रोजेक्ट बॉडी की है विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन लेफ्ट मूव अंडर द ऐसे। देखो बेटे यहाँ है, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये हिट कर रही है। तो हियर दिस इज यू एंड दिस यू हियर इज एट एन एंगल थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट है यू का? यू का थीटा एंड दैट इज नोन एज यू एक्स। और ये कौन सा कंपोनेंट है? यू साइन थीटा एंड दैट इज नोन एज यू वाई। देखो बेटे क्या, दैट इज नोन एज यू वाई। Let at any instant of time after a time t the body reaches to point P. The body reaches to point P. So the at that time this is known as instantaneous. At this instant the velocity at point P is known as instantaneous velocity at time t. तो यहाँ बेटा एक वेक्टर लेंगे, यहाँ v वेक्टर, और यहाँ बेटा क्या है, इसके भी कंपोनेंट्स है ना इस वेलोसिटी के भी। ये है इसका vx कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज vy कंपोनेंट। थोड़ा समझ लो बेटा, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स। सी डियर, this is v and this is its component, that is vx, and this is dear student it is vy component here. This vy continuously decreases, in fact it decreases here, तो ये vy है क्या है, कौन सा component है v? See dear, after time t, let यहां लिखो, let after time t the body reaches to point P, reaches to point P। तो ये आपको पता है कि यहां हमने कितना डिस्टेंस किया है x, और यहां कितना किया y, यहां से यहां तक कल मैंने दिखाया था वो, लेकिन आज I will derive this thing from also this from x coordinates। लेकिन यहां थोड़ा समझ लो बेटा, देखो एक दो तरीके से निकालूंगा इसको ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। Let after time t the body reaches to point P। Okay dear students, therefore let यहां लिखेंगे कवरिंग, ये भी लिख सकते हैं कि कवरिंग x डिस्प्लेसमेंट along x axis and y डिस्प्लेसमेंट along y, लेकिन बाद में करेंगे वो मेथड भी, लेकिन पहले we will go from simple to complex। Let v is the velocity, let v is velocity, instantaneous velocity at point, किस पॉइंट पर? At point P। Let v is instantaneous velocity at point P। तो इस पर क्या ड्रॉ करना है? Want tangent, because the tangent drawn at any point gives the direction of velocity at that point। No dear students, this is because it is moving under the combined effect of two velocities। I will resolve this v into x-axis and y-axis। This is x component of velocity here and this is y component of velocity here and after time t। So this is final velocity dear students, this is initial velocity। Initial velocity is u and final velocity is v। See now I have to find this final velocity in terms of initial velocity and initial components। देखो बेटा क्या करेंगे, देखो I will use separately equations of motion along x axis, separately along y axis, because by this we reduce two dimensions into one dimension। in straight line में आसान यूज करने होते हैं ना बेटा क्या, equations of motion। So I will reduce, I will resolve here, I will break this velocity component along x axis and y axis, then I will take separately equation along x axis and separately and independently, and then I will take separately and independently equations of motion along dear students y axis। बात आ रही समझ में? हाँ आ रही है। देखो बेटा क्या है, देखो आप समझ, देखो बेटा, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने आसान है बेटा। देखो क्या है, सिर्फ हम v वेक्टर लिखेंगे बेटा। देखो क्या है यहाँ, ये जो है ना वेलोसिटी, आप देखो तमाशा बेटा, यहां ये वेलोसिटी बताया यूजिंग, आप क्या करेंगे बेटा, यूजिंग equation of motion, using equation of motion from O to P। पहले आसान तरीके से करेंगे, फिर बेटा दिखाएंगे ना शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसके लिए। थोड़ा समझ लो, पहले समझ लो, बेसिक्स क्लियर कर लो। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम O to P, O to P बेटा यूजिंग, लेकिन पहले किस में, पहले x एक्सिस में, फिर y एक्सिस। लेकिन कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन सी इक्वेशन, क्या मैंने बेटा लिखा है यहाँ, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ओ टू पी, लेकिन कौन सी, v इज इक्वल टू यू टी, पहले x एक्सिस की तरफ फिर y एक्सिस की तरफ। देखो बेटा सी डियर, फर्स्ट ईयर along
along x axis, along x axis, ये इक्वेशन। तो क्या बनेगी ये फ्रॉम ओ टू पी? बेटे v के बदले लिखो vx और बेटे u के बदले ux प्लस a के बदले x और t स्केलर क्वांटिटी, इसके कंपोनेंट्स नहीं है। तो देखो बेटे क्या है, ये vx क्या है, vx तो ये मालूम कर रहे हैं x कंपोनेंट, ये है vx यहां इसका कंपोनेंट फाइनल हियर फॉर दिस मोशन इट इज फाइनल वेलोसिटी। तो ux कितना है ux बेटा, दिस इज u cos थीटा डियर स्टूडेंट्स प्लस ax क्या है 0, नो एक्सेलरेशन अलोंग x axis because along this direction fx is 0। याद रखो बेटा vx along this direction is constant, हमेशा के लिए याद रखो। देखो तो x क्या है बेटा 0 into t, तो बेटा क्या है vx क्या है, vx आया यहां u cos थीटा, क्या है vx। So that means horizontal component, final x component of velocity is equal to its initial component, but बेटा ux भी किसके बराबर है, but ux is equal to u cos theta। Therefore यहां क्या निकला हमको, that is here, that is ux is equal to vx and is equal to u cos theta, thus the horizontal component remains here constant, no change, no, because acceleration along this direction is 0। तो क्या है ux is equal to vx is equal to u cos theta is equal to that is constant, क्या रहा है बेटा ये constant, आई बात समझ में। तो क्या है vx, ये किसके बराबर है, ये यहाँ बेटा u cos theta के बराबर है, किसके बराबर, u cos theta, किसके बराबर u cos theta, किसके बराबर u cos theta। ओके वेरी नाइस। लेकिन ये एंगल बेटा, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, मैं ना जब बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, बाद में बेटा करेंगे ना ये डिस्कस। लेकिन कंपोनेंट क्या है इसका, मैग्नीट्यूड कितना है u cos थीटा, सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल। ओके होप यू हैव गॉट दिस। देखो बेटे क्या है सी डी है, आप देखो आप किस डायरेक्शन में करेंगे बेटा, यही इक्वेशन। नाउ अलोंग व्हाट डायरेक्शन, नाउ अलोंग y डायरेक्शन, नाउ अलोंग y डायरेक्शन। लेकिन कौन सी इक्वेशन, कौन सी, v इज इक्वल टू, वेलोसिटी के लिए निकालनी है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां लिखेंगे यूजिंग क्या, यू नाउ अलोंग व्हाट डायरेक्शन, y डायरेक्शन। लेकिन कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बेटे क्या लिखेंगे यहां, सीधे लिखो, आसान तरीके से जल्दी लिखो। तो v आएगी बराबर vy और u आएगी बराबर बेटे uy प्लस ayt, ठीक है ना। दिस इज नॉट दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो बेटे vy यहां vy लिखो, लेकिन uy कितना है, uy तो u sin थीटा, यू नो दिस u sin थीटा। लेकिन यहां एक्सेलरेशन है क्योंकि इस डायरेक्शन में है वर्टिकली, लेकिन डाउनवर्ड्स माइनस g। तो u sin थीटा प्लस ay के बदले लिखेंगे माइनस g इंटू टी। तो बेटा vy किसके बराबर आएगा, u sin थीटा प्लस माइनस जी टी। होप यू हैव गॉट दिस। तो vy किसके बराबर, u sin थीटा प्लस माइनस जी टी। दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बट अलोंग व्हाट डायरेक्शन, y डायरेक्शन, बट आफ्टर टाइम t, but along y axis। Okay, you have got this, dear students, and that component that is changing because g, as time increases, the speed decreases because due to this factor। आई बात समझ में। तो ये डिक्रीज हो रही है, देखो बेटे क्या है, आप देखो यहां। तो therefore vy किसके बराबर है, इसके बराबर, और आर इसकी लिखो यहां बेटा, इसकी लिखो सेकंड और इस इक्वेशन को लिखो फर्स्ट लिखो इसको, यहां ऐसे लिखेंगे vx किसके बराबर आया, u cos थीटा, लिखो इसकी फर्स्ट। और बेटे vy किसके बराबर आया, क्योंकि vx आया ना u cos थीटा, vy किसके बराबर आया, u sin थीटा माइनस gt, इसकी लिखो सेकंड। इसकी बेटे क्या लिखो, राइट डाउन इट एज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बेटे क्या है, सी नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी नाउ, आप देखो तमाशा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप क्या है, दिस v is now this is along, I can write velocity, this velocity as this is I can here form a triangle। बेटा यहां ऐसे लिखेंगे, ये vx है बेटा, ये यहां से v है भैया, तो ये भी है ना vy यहां। तो यहां क्या डायरेक्शन लेंगे, I cap is the unit vector along this direction and j cap is the unit vector along this direction। तो मैं क्या लिखूंगा, ये v vector, अब v vector this was in magnitude, this is magnitude, these things are in magnitude form। आप इसको वेक्टर लिखेंगे ना, in fact velocity here is a vector quantity। तो ये वेक्टर क्या है, v, it is vxi plus vyj वेक्टर। क्यों, by triangle of acceleration, simple। ये v किसके बराबर है, v वेक्टर, this plus this वेक्टर, vxi
प्लस वी वाई जे। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along x axis, v axis is the magnitude, तो ये magnitude into direction gives vector but along x axis, तो vy is magnitude along y axis and multiplied by j cap, that becomes a vector, and we know that from in this triangle this velocity vector is equal to this vector and this j's are in the same order but this is in opposite. Very simple, already पढ़ा है ना vectors, सब कुछ ये vectors है ना बेटा, vectors strong होनी चाहिए, vectors अच्छे तरीके से पढ़ो, कुछ भी नहीं है बेटा। देखो क्या, और कंसेप्ट क्लियर करो, मेहनत करो, और क्या है बेटा। तो v किसके, vx i प्लस vy j, तो v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, v का, अरे v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, मैंने कहा था ना कि इसका ले लो vx स्क्वायर और बेटा प्लस इसका ले लो क्या, vy स्क्वायर। आई बात समझ में, j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहां vx स्क्वायर और यहां vy स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया खाली v किसके बराबर आएगा बेटा, v यहां लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और बेटा इसकी इक्वेशन थर्ड लिखो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, क्योंकि ये है ना vx u का थीटा, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड में डालो बेटा, थर्ड में, वेरी इजी, वेरी इजी, लिखो बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ, शाबाश डियर स्टूडेंट, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, लिखो सब्स्टिट्यूट, इसकी लिखेंगे थर्ड इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स, तो लिखो बेटा। तो v किसके बराबर आएगा, v अंडर रूट लिखेंगे, यहां v के बदले क्या लिखेंगे, u cos थीटा, लेकिन यहां है ना स्क्वायर, प्लस vy के बदले क्या लिखेंगे, u sin थीटा माइनस gt का, लेकिन यहां क्या है स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब रब करेंगे, सी डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी, देखो देयरफॉर v किसके बराबर आएगा, v अंडर रूट, बेटा यहां आएगा, यहां u का भी स्क्वायर है और cos थीटा का भी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर, या इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस बेटा यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये बेटा, तो किसके बराबर आएगी, यहां लिखेंगे, यहां देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज a एंड दिस इज प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर gt का होल स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, माइनस क्या आएगा बेटा, यहां माइनस ट्वाइस, यहां लिखेंगे ट्वाइस, a के लिखेंगे u साइन थीटा और b के लिखेंगे बेटा gt। आई बात समझ में, वेरी नाइस, वेरी इजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी डियर, आप क्या आएगा, देयरफॉर v किसके बराबर आएगा, v अंडर रूट, यहां लिखेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां क्या है बेटा, प्लस है ना u स्क्वायर, यहां कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बेटा, u स्क्वायर, क्या निकलेगा कॉमन, u स्क्वायर, तो अंदर क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा मैंने, क्या लिखा, u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस, यहां ये माइनस है, 2 स्क्वायर है, 2u साइन थीटा gt। ओके, तो किसके बराबर आया, जल्दी लिखो, देयरफॉर v किसके बराबर आएगा, v आएगी बराबर, यहां बेटा अंडर रूट लिखेंगे ऐसे, ये दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीधे लिखेंगे u स्क्वायर प्लस यहां क्या लिखेंगे, g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस लिखेंगे 2u sin थीटा gt। ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गई, बता बेटे, किसके लिए एक्सप्रेशन आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। होप यू हैव गॉट दिस, समझ में आया या नहीं आया समझ में, या कोई आप डायरेक्टली ऐसे लिखो बेटा, डायरेक्टली लिखो ना ऐसे, जैसे कि आपको मिल गई इक्वेशन ऐसी, क्या आई थी, किसके बराबर आई थी, v इज इक्वल टू, यहां था ना ये u cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहां आई थी, क्या आया था बेटा, gt माइनस, वही आया था ना कुछ, क्या आया था, u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, यही खत्म कर लो, यहाँ शॉर्ट लिखो ना, यही जो पहले, जरूरी नहीं एक्सपेंड करने की, यही से खत्म करो, यही रखो, यही ऐसे ही रखो। ये है कौन सा कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, इसका स्क्वायर, यही भी अंडरस्टैंड, चाहे ऐसे याद रखो या ऐसे रखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी नाइस।
So I have got this now the direction of, this is the magnitude of instantaneous velocity at point P. So magnitude कितना है इसका, u का theta का whole square plus u sin theta minus gt का, लेकिन this v is a vector quantity, so आप इसकी क्या निकालने बेटा डायरेक्शन, but with respect to x axis निकालो या with respect to y axis, लेकिन better है कि with respect to x axis निकाले, ठीक है ना। तो let this v makes an angle alpha, let this v makes an alpha with the horizontal direction or with the x axis because this is parallel to this. So अगर अल्फा जो वेलोसिटी अल्फा बनाएगा ना इसके साथ, that means it is making with x axis। देखो आप क्या निकाल लिया, डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन, direction of velocity and that is the direction of motion of the projectile, that is the motion of the projectile at each and every point. The direction of instantaneous velocity will give us the direction of the motion of projectile at each and every point. Okay, very nice. And that continuously changes here. Because it is the instantaneous value at any point is the tangent drawn at that point. And that tangent here it is this, here this is this, and it continuously changes. Okay, very nice. देखो अब डायरेक्शन ये निकालो, क्या ये आसान है ना, मैंने कहा ना कि किस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो क्या बताओ tan अल्फा किसके बराबर है। यहाँ देखो पहले let alpha is angle between v and vx. What does it mean? That is the velocity vector that makes it with the direction of x axis, क्योंकि direction of x axis में कौन सा वेक्टर है vx, this is alpha, this alpha is less than theta, keep this thing, this is less than theta। इस यहां से यहां तक क्या है, ये अल्फा क्योंकि ये कम हो रहा है, क्योंकि जितना ये बेटा डाउन हो रहा है तो ये कम हो रहा है, और यहाँ अल्फा क्या आएगा 0 क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा डिक्रीज हो रहा है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, दिखाएंगे ना आगे न्यूमेरिकल्स में। देखो बेटे क्या है, देखो तो यहाँ क्या v, तो ये अब tan अल्फा बिकॉज tan अल्फा यूज डायरेक्ट, tan अल्फा किसके बराबर आएगा, tan अल्फा दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो vy by vx क्या आएगा बेटा, किसके बराबर आएगा यहाँ, vy is magnitude along this y direction and vx is magnitude along this, so tan अल्फा किसके बराबर आएगा, vy by vx। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में छोरा, हाँ आई सर आई बात समझ में। देखो आप देखो तमाम, देखो डियर स्टूडेंट से tan अल्फा क्या लिखेंगे, tan अल्फा तो tan अल्फा लिखेंगे यहाँ बेटा v by किसके बराबर था, आपको पता है ना, इसकी लिखो आप, लिखो फोर्थ इक्वेशन vy by vx। Let this equation will give us the direction of velocity with respect to x axis। तो इसकी लिखो इक्वेशन नंबर क्या, फोर्थ लिखो, हाँ लिखो फोर्थ। बट vy किसके बराबर है, याद है भी निकालना vy, याद है ना, बट हमने निकाला है vy किसके बराबर, vy अरे निकाला ना, u माइनस u वो किसके बराबर आई थी, u sin थीटा माइनस gt, याद है ना। इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो ना, vy किसके बराबर, u sin थीटा माइनस gt, या ऐसी डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा ना आपकी खातिर, क्योंकि मैंने मिटा दिया ना वो ऐसी, vy is equal to uy plus at, uy is equal to u sin थीटा प्लस ये a है ना माइनस जी t, तो क्या है vy, u sin थीटा g, और vx क्या है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज हर जगह क्या है इसका वैल्यू cos थीटा, और इसका पार्ट लिखो फर्स्ट पार्ट, इसका लिखो सेकंड पार्ट, यहाँ सब्स्टिट्यूट दीस पार्ट्स इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इन फोर्थ, सब्स्टिट्यूट दीस इन किसमें करो, दीस इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ क्या बनेगी, देयरफॉर tan अल्फा किसके बराबर आएगा, tan अल्फा vy के बदले क्या लिखो बेटा, u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि vy के बराबर, और vx क्या है, vx बेटा divided by u cos theta, and this equation will give you the direction of velocity with respect to what, x axis। अगर बीटा यहां लिखेंगे बीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा vx, अगर बीटा लिखेंगे यहां वो vx by vy आएगा, इसका रेसिप्रोकल। अगर कोई कहेगा ना आपको डायरेक्शन करो मालूम विद रेस्पेक्ट टू y, तो बीटा से लिखो ये, तो वो tan बीटा किसके बराबर आएगा बेटा, vy by vx by vy, इसका रेसिप्रोकल आएगा। कभी होता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना नीट जेईई में, डिफरेंट तरीके से पता होनी चाहिए। ओके वेरी नाइस, टफ है क्वेश्चन, नो सर इजी है, बात आई समझ में छोरा, आई बात समझ में, हाँ इजी है। सपोज इसने यहाँ, अब इसको साफ करेंगे थोड़ा, दिखाएंगे थोड़ा और भी दिखाएंगे। सपोज यहाँ हमने बेटा ऐसे किया ना, ऐसे ये ऐसी है और हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया ऐसे, सपोज इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी वेक्टर है और बेटा ये कौन सा वेक्टर है, ये vx वेक्टर है,
और बेटा ये वी वाई है यहाँ। अगर ये भी है ना वी वाई, ये भी वी वाई है, अगर इसको कंबाइन करेंगे, ये अल्फा था, ये टेन अल्फा था ना, यू साइन थीटा माइनस, अगर ये या इसके साथ क्या बना था बीटा। बताइए टेन बीटा किसके बराबर होता है, टेन बीटा ये परपेंडिकुलर बाय दिस इज जस्ट वी, अगर ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स, अगर ये वी वाई है तो ये भी वी वाई। ये टेन बीटा क्या है, टेन बीटा दैट इज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्सिस, वाई एक्सिस, कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, वी एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वी एक्स बाय वी वाई। तो इस वक्त इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या, u cos थीटा डिवाइडेड बाय वी वाई क्या इस वक्त, u sin थीटा माइनस जी टी। लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, ये भी डायरेक्शन वेलोसिटी की है, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। लेकिन ये क्या डायरेक्शन है, दिस इज इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। होप यू हैव गॉट दिस, वेरी नाइस, वेरी इजी। देख घूमो इधर उधर इसको, देखो बेटा, देखो बेटा आप क्या है, अब आसान, बहुत आसान है ना ये। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो आप क्या, आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे ना आपको थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए। आज का टॉपिक सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, आज का टॉपिक सिर्फ किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में दिखाएंगे आपको। देखो बेटा, एक छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे यहाँ, छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल। देखो बेटा, देखो आप क्या समझाएंगे। एक यहाँ तो यहां से ऐसे ऐसे, तो यहां क्या है, सिर्फ बता वी वाई क्या आ रहा है यहाँ, वी वाई इज इक्वल टू 0। तो आनी कंपोनेंट क्या रहता है, यू cos थीटा, क्योंकि इट डज नॉट चेंज व्हेन दिस इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी यू, दैट मेक्स एन एंगल थीटा। सो ये है यू cos थीटा, ये कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, यू sin थीटा। अब देखो तमाशा, हमें इसको अगर यू एक्स लिखेंगे ना, यू एक्स, तो यू एक्स है यू cos थीटा। लेकिन बेटा दिस इज मैग्नीट्यूड, अगर यू एक्स को बेटा वेक्टर लिखेंगे ना, तो यहां u cos थीटा आई कैप लिखना, क्योंकि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। डायरेक्शन व्हेन डायरेक्शन इज मल्टीप्लाइड टू द मैग्नीट्यूड इट बिकम्स अ वेक्टर, एंड नाउ दिस ux इज वेलोसिटी अलोंग दिस, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल। लेकिन ये खाली यहां मैग्नीट्यूड है, ये खाली यहां uy का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर uy लिखेंगे तो बता बेटा, uy अगर वेक्टर लिखेंगे तो u sin थीटा, लेकिन वहां क्या है, j कैप लिखना है, क्योंकि डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड गिव्स uy वेक्टर। ये जहन में रखो बेटा, ये बातें जहन में रखो। ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में। तो देखो आप क्या है बेटा तमाशा, आप देखो तमाशा, देखो तमाशा, देखो बताओ सबसे मिनिमम स्पीड कहां है, सबसे मिनिमम स्पीड है एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये एच मैक्सिमम है मान लीजिए। वेयर इज मिनिमम स्पीड, यहां लिखो, लिखो मिनिमम स्पीड इज एट, मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड कहां पर है बेटा, स्पीड इज एट हाईएस्ट पॉइंट, इज एट हाईएस्ट पॉइंट। नोट करो ये बात, नोट करो बेटा, मिनिमम स्पीड इज एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है, वो स्पीड क्या है, यू मिनिमम, वी मिनिमम, वी मिनिमम होती है दैट इज यू cos थीटा, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट जो चेंज नहीं हो रहा है, यू यहां भी है, लेकिन यहां वी वाई 0 बन गया, तो यू वाई किसके बराबर, यू एक्स किसके बराबर, यू cos थीटा। तो खाली वेलोसिटी जो है ना वो है यू cos थीटा, ड्यू टू यू cos थीटा। तो यू मिनिमम क्या है, यू cos थीटा, यू मिनिमम क्या है हाईएस्ट पॉइंट पर, यू cos थीटा, याद रखा। तो यू sin थीटा क्या है, ये sin कंपोनेंट क्या बनता है, 0, y कंपोनेंट क्या बनता है, 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि टेम्पररी रेस्ट में आता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली चलता है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि जो स्पीड यहां वही स्पीड यहां, वही स्पीड यहां, वो क्या है, ये स्पीड क्या है, वो स्पीड है यू cos थीटा। बात आई समझ में। तो यू मिनिमम क्या है, वी मिनिमम क्या है ड्यूरिंग द मोशन, दैट इज यू cos थीटा, एंड दैट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, किस पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, हाईएस्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन यहां बनाऊंगा आपके लिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, देखो बेटा न्यूमेरिकल। if u minimum, if minimum speed is, if minimum speed is 1 by root 2 times the initial speed, if minimum speed is 1 by root times the initial speed, the initial speed of the projectile, of the projectile, then what is the angle of projection, then what is the angle of projection, this is known as angle of, then what is the angle of projection। आसान क्वेश्चन लेकिन करो, अच्छा क्वेश्चन, बेसिक फंडा। then what is the angle of projection, then what is the angle of projection, करोगे बेटा, करो, जल्दी करो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है मैंने,
क्या लिखा बेटा मैंने, शाबाश। इफ मिनिमम स्पीड इज 1/√2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड, ये है इनिशियल स्पीड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मिनिमम स्पीड तो पता है कितनी होती है, u cos थीटा। देखो बेटा सॉल्यूशन आसान है ना क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। वी नो u मिनिमम किसके बराबर होती है, पहले ये जानना है कि v मिनिमम, मिनिमम स्पीड किसके किसके बराबर होती है, v मिनिमम किसके बराबर होती है, v मिनिमम वो होता है u cos थीटा, किसके बराबर, u cos थीटा। नो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बता, इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड लिखो, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड क्या है बेटा, ये है कितनी u, कुछ आई बात समझो। मिनिमम स्पीड क्या है, u cos थीटा, इनिशियल स्पीड क्या है u, लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मिनिमम स्पीड इज 1/√2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन, इट सेज दैट, इट यहां क्या कह रहा है, दैट मिनिमम स्पीड इज u cos थीटा is 1/√2 times the initial speed, that is u। आई बात समझ में, हाँ बेटा आई बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन, आई बात समझ में, हाँ बेटा आई बात समझ में। देखो देखो क्या है, सी डी एन नाउ 1/√2, तो u और u क्या कैंसल, तो cos थीटा किसके बराबर आया, 1/√2। देयरफॉर ये किसका, ये cos थीटा, ये होता है यहाँ लिखेंगे cos 45 होता है बेटा 1/√2, cos 45 किसके बराबर है, 1/√2, तो cos थीटा लिखेंगे यहाँ cos 45 का, तो cos और cos कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर आया, 45। बट व्हाट इज थीटा, इट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है इस वक्त, 45 डिग्री। आसान आसान, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, डरते हैं फिजिक्स से। अरे क्यों, आसान है ना फिजिक्स, बहुत मजेदार है फिजिक्स, लजीज अजीज और जूसी। लेकिन आज मत जूस पियो ना, आज आप रोजा रखा है ना बेटा, ठीक है ना, लेकिन ये करो हासिल करो ना, इल्म करो हासिल, डियर स्टूडेंट्स पढ़ो फिजिक्स, अरे बनो अच्छे डॉक्टर, कोरोना का इलाज करो, कोरोना का इलाज करो बेटा, ऐसे डॉक्टर बनो, कोरोना वायरस का इलाज करो। ओके, तो देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज लाइक दिस, और एक और प्रॉब्लम बना होगा, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम, another problem, second problem, if the ratio of यहां लिखेंगे रेशो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा if angle of projection is 60, डिग्री। आप क्या है यहां, दूसरी प्रॉब्लम बेटा, दूसरी प्रॉब्लम देखो बेटा, if angle of projection is 60 degree, then find the ratio of minimum kinetic energy to the, then find the ratio of initial kinetic energy to the minimum kinetic energy, initial kinetic energy to the minimum kinetic energy कहाँ है बेटा, कहाँ है, at the highest point, क्योंकि वहां मिनिमम स्पीड है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। आसान है ना, वो किसके बराबर, यू cos थीटा, स्पीड किसके बराबर है, यू cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड किसके बराबर है, यू cos थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, बहुत आसान, ऐसे ये ऐसे और ऐसे, ये है यू, आपको ये मालूम करना है, नहीं ये दिया गया थीटा किसके बराबर है 60, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, लेकिन स्पीड आपको पता है कि मिनिमम स्पीड क्या है, यहाँ मिनिमम वी मिनिमम क्या है, मिनिमम स्पीड दैट इज यू cos थीटा, यहाँ अगर यू है तो थीटा कितना है 60। अब मैडम यू कैन इजीली फाइंड दिस। देखो बेटे क्या सोल्यूशन इसका, बता इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज दिस, वो क्या है 1/2, अगर इस बॉडी का मास कितना है, प्रोजेक्टाइल का मास है एम यू स्क्वायर, दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो के मिनिमम क्या है, यहाँ मिनिमम सबसे ज्यादा, यहाँ के मिनिमम हो गया एट हाईएस्ट पॉइंट, के मिनिमम किसके बराबर, के मिनिमम वो होगी 1/2 एम, लेकिन यू के बदले की ये स्पीड क्या है यहाँ, यू cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटे इसकी क्या लिखो है, ये मास एम है,
इसकी लिखो इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करना है आपको, रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल क्या है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन सेज, रेशियो करना है किस किस का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द, डिवाइड करो किसे, मिनिमम से, वही रेशियो आएगा ना, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, के आई बटा के मिनिमम, वो किसके बराबर आएगा, 1/2 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mu cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 1/2 कैंसिल, mm कैंसिल, और बेटा आप क्या आएगा बताइए, आसान क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सीरियर मजेदार क्वेश्चन। देयरफॉर बेटा यहाँ के आई बाई के मिनिमम किसके बराबर आएगा, के आई बाई के मिनिमम यू स्क्वायर बाई, यहाँ बेटा यू cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखिए, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, लेकिन थीटा किसके बराबर 60, देयरफॉर के इनिशियल डिवाइड बाई के मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा किसके बराबर है 60 के बराबर, तो निकालो, देखो बेटा क्या आएगा, के मिनिमम डिवाइडेड बाय के इनिशियल के इनिशियल डिवाइड बाय के मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई cos 60 का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा आपको पता है ना कि cos 60 किसके बात है, cos 60 होता है बराबर 1/2, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ये आएगा 1/2 cos 60 है ना, 1/2 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा बराबर 1/1 स्क्वायर 1 एंड 2 2 जार 4, तो ये क्या, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो 4/1 तो 4 क्या है, तो व्हाट इज रेशियो हियर, तो देयरफॉर के इनिशियल रेशियो टू के मिनिमम इज 4:1, क्योंकि वो 4 आया ना, नहीं आई बात समझ में छोरा, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है नहीं है, आसान क्वेश्चन है डियर, ओके वेरी नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब दिखाएंगे थोड़ा, ये नीट के क्वेश्चंस है, नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, नीट में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस, कभी कभी जेईई में भी आते हैं। देखो क्या है, सी डियर स्टूडेंट, सी नाउ, सी माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा दिखाएंगे बेटा, थोड़ा दिखाएंगे थोड़ा, ओके वेरी नाइस, सी डियर, इधर उधर घूमो आप, न्यूमेरिकल थर्ड ईयर, आसान सा, ये आया था 2012 में, नीट में आया था ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, देखो बेटा क्या है, यहां बेटा ऐसे है क्वेश्चन, देखो क्या है, सीरियल, अगर ये यहां है u, ये u cos थीटा है एंड दैट कंपोनेंट इज u sin थीटा, सीरियल, what will be the velocity at this point, that is at the hitting point, it goes like this and finally hits the ground, what will be the velocity, यहां आप टेंजेंट डालेंगे, यहां ऐसे है नहीं, यहाँ टेंजेंट दैट विल गिव अस द इंस्टेंट टाइम एट द हिटिंग ग्राउंड, और ये क्या है बेटा, ये इसका vx है, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है vy, देखो क्या है, निकालेंगे, समझाएंगे आप लोगों को। अगर बेटा ये u है, ये कौन सा कंपोनेंट ux, बट ux किसके बराबर होता है, vx के बराबर, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर, ये निकालना था, ये vx किसके बराबर है, ये एक्चुअली ये निकालना है, पहले ये निकालो, फिर ऑटोमेटिकली ये निकलेगा। क्वेश्चन क्या था, इफ दिस इज दिस फाइंड v मालूम करो, v किसके बराबर है, v किसके बराबर है, ये v किसके बराबर इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, इफ दिस इज क्वेश्चन फाइंड v, कैसे निकालोगे आप, देखो बेटा ux चेंज नहीं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, सो ये vx है, तो दिस vx इज इक्वल टू ux, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात है, जो यहाँ जिस स्पीड से हम यहाँ करते हैं ना लॉन्च वर्टिकल, इसी से ये, लेकिन ये डाउनवर्ड में आएगा, डाउनवर्ड में, अगर यहाँ ये uy है तो uy किसके बराबर आएगा, uy इज इक्वल टू माइनस vy, देखो बेटा क्या है, समझाएंगे, आई विल डिराइव दीज थिंग्स। जिस वेलोसिटी से हम बेटा यहाँ, अगर आपने u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड से कोई लॉन्च की, जब मैं वापस आएगी तो इसी वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करेगी, लेकिन v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, सेम वेलोसिटी बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, स्पीड विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट है, यहाँ डायरेक्शन बेटा अपवर्ड्स, लेकिन यहाँ डायरेक्शन डाउनवर्ड्स।
तो ये क्या लिखेंगे, ये यू इनिशियल अगर यहाँ बेटा कितना है यू इनिशियल, यहाँ यू 50 है 50। अगर वेक्टर में लिखेंगे यू वेक्टर तो लिखेंगे 50 जे कैप। अगर ये वी वेक्टर में लिखेंगे ये 50 लिखेंगे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन माइनस जे कैप। सेम है यहां यू साइन थीटा, यहां आई जे कैप लेकिन यहां माइनस जे कैप। देखो बेटे क्या है, यहां क्या है यू, यहां ऐसे लिखेंगे यू, यू हियर इज दिस इज यू एक्स एंड दिस इज यू वाई, तो मैं लिखूंगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप है यहां। लेकिन यहां क्या है, सेम सेम है यहां। देखो क्या है यहां v किसके बराबर, v देखो बेटा v किसके बराबर, वी एक्स आई प्लस, लेकिन ये माइनस है ना यहां, क्योंकि only thing this and this vertical component in the launching position and in the hitting position is same but in opposite direction। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर सेम नहीं है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे वी वाई, ये वी एक्स माइनस लिखेंगे वी वाई जे कैप। यही था यहां एक था प्लस, यहां ये माइनस, कौन सा प्लस, ये सेम रहेगा लेकिन माइनस कौन सा कंपोनेंट है वी वाई कंपोनेंट। ये डिराइव भी करेंगे डिराइव। देखो कैसे दिखाएंगे। ये नीट का क्वेश्चन था, क्या था बेटा, नीट का क्वेश्चन। ये आई बात समझ में, ये यू वाई के जो है ना ऊपर, ये यहाँ यू एक्स, तो यू एक्स का मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन तो सेम, तो ये वी एक्स सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ये क्या नेगेटिव। क्वेश्चन ऐसा था, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ ये 4i कैप है और यहाँ ये 3j कैप है, बता फाइनल में क्या आएगी, ये v किसके बराबर है, v किसके बराबर आएगी, यहाँ ये सेम होगा ना 4i कैप, लेकिन ये क्या होगा बेटा, ये -3j। ये क्वेश्चन था, तो आप लिखेंगे यहाँ v इज इक्वल टू हियर, v इज इक्वल टू 4i कैप, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये सेम रहता है ना वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है, यहाँ लिखना -3j कैप। ये क्वेश्चन आया था, नीट में आया था, ये देखना नीट 2012 में आया था, आसान सा क्वेश्चन। अब डिराइव करेंगे, थोड़ा इसको डिराइव करेंगे क्योंकि टाइम कम है, लेकिन डिराइव दिखाएंगे आपको ये कैसे है, दिखाएंगे बेटा कैसे, देखो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाएंगे। सपोज अगर ये लेंगे बेटा, देखो क्या है यहाँ ऐसे तो ऐसे, देखो बेटा क्या है यहाँ ये u cos थीटा है ना, अगर ये क्या है, इफ दिस इज u, अगर दिस इज थीटा, तो ये क्या है बेटा, ये u sin थीटा, लेकिन ये uy है बेटा, लेकिन ये क्या है ux। देखो आप तमाशा देखो, यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है, यहां से दैट इज t, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो बेटा यूजिंग वर्टिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन किस डायरेक्शन में, vy, लेकिन कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट, मान लीजिए m है, फ्रॉम 0 टू m, कहां से मोशन लेंगे बेटा, मोशन कहां से लेंगे, फ्रॉम 0 टू m, फ्रॉम 0 टू m, कहां से मोशन लेंगे, 0 टू m। सो टाइम क्या आएगा इस पर, t आएगा, t कैपिटल, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, t किसके बराबर आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो बेटा अब यूजिंग वर्टिकल इक्वेशन by इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू ay, लिख सकते हैं ना वर्टिकल इक्वेशन। देखो बेटा एट दिस by यहां क्या है, t कितना लगेगा, by तो ऐसे ही लिखो, ये by मालूम करना है ना, यहाँ by किसके बराबर, ये by ऐसे थोड़ा सा, ये by मालूम करना है, ये v है, देखो ये v है, ये vx है, और बेटा ये क्या है, vy मालूम करेंगे क्योंकि vx इज कांस्टेंट, दैट इज u cos थीटा, ठीक है ना। vy कितना है, uy कितना है, एक्चुअली u sin थीटा, प्लस ये माइनस है ना, माइनस क्योंकि इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, हमने माइनस ले लिया, ये y है ना, ay किसके बराबर आएगा, ये माइनस gt के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g, लेकिन t कितना मान लिया हमने, t मान लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, t कैपिटल t है ना, यहाँ t किसके बराबर है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। याद है टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2u sin थीटा बाई g, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2u sin थीटा बाई g। तो बताइए vy किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी, दिस कंपोनेंट वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आएगा बराबर u sin थीटा माइनस g, ये t किसके बराबर है, 2u sin थीटा बाई g, ये g और g कैंसिल, बताइए बेटे किसके बराबर आएगा, बताइए बेटे, यहां लिखेंगे vy comes out to be as u sin theta minus 2u sin theta, minus 2u sin theta। करो आप, निकालो इसमें बेटा, निकालो, क्या निकालो,
Therefore vy किसके बराबर आएगा? vy comes out to be as u sin theta. 2u sin theta को u sin theta माइनस करो, क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इसकी साइन है ना माइनस u sin theta. आया ना? क्या डायरेक्शन है vy की? सेम एज दैट इनिशियल था u sin theta और फाइनली vy क्या किसके बराबर आया? बताइए फाइनल किसके बराबर आया? ये आया माइनस u sin theta. तो आनी क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ द हिटिंग ग्राउंड बट नेगेटिव साइन. लेकिन ये क्या है? ये अगेन रहेगा u cos theta. बात आई समझ में? बात आई छोरा समझ में? नहीं आई बात समझ में? समझ लो. अच्छा बताओ, अगर ये थीटा है, अगर ये u थीटा बनाता है, व्हाट इज द वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान यहाँ एंगल कितना है? यहाँ ये थीटा बनाता है. यहाँ भी कितना बनाएगा? ये थीटा. तो 2 थीटा बनाता है. लेकिन बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे आगे. लेकिन इतना ही आज टाइम खत्म हुआ. बताएंगे कहीं बेटा, बताएंगे ये घर में करना. ये final at the hitting point, the velocity, the angle between the initial velocity and the final velocity is 2 theta. If the initial velocity makes an angle theta with the horizontal. दिखाएंगे कभी दिखाएंगे, इस वक्त नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा. ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल टोकी में अल्लाह ब्लेस यू.